बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम डॉक्टर नाइला नसीर है और मैं शोबा फ़ासलाती गैर रस्मी और तालीम जारिया में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारे बीएड के कोर्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसका कोर्स कोड 8619 है, उसमें खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी टॉक का मकसद ये है कि हम आपको इस कोर्स के बारे में बताएं कि ये क्यों डिज़ाइन किया गया है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की आप लोगों के लिए क्या ज़रूरत है। बेसिकली प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जो हमारे बीएड 4 इयर्स और 1.5 इयर्स के हैं, उनके लिए हमने ये कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि बदलते हुए तकाज़ों के साथ उन्हें हम क्लासरूम के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के बारे में बता सकें ताकि वो अपनी तदरीस को बेहतर बनाएं। लिहाजा बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रोग्राम की तरफ, जिसका टाइटल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेचर एंड स्कोप। अज़ीज़ तलबा, देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो डिराइव हुई है फ्रॉम टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट। तो जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बेसिकली इट्स कंपोज्ड ऑफ two words, education and technology. So we cannot separate educational technology from the use of technology in education. लेकिन ये एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन से भी डिफरेंट है। तो आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप लोगों को इनकलकेट किया जाए कि क्या डिफरेंस है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है। तो अज़ीज़ तलबा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब है वो तमाम आलात, टेक्नोलॉजिकल टूल्स विच आर यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, more fruitful and comprehensive, so that we can attain the educational outputs or educational objectives. लेकिन जब हम educational technology की बात करते हैं तो that is composed of technology in education with the software aspect. तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है वो हमारा हार्डवेयर एस्पेक्ट बन जाता है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचर। ठीक है, मैं तो उसको टेक्नोलॉजी ऑफ टीचर इसलिए कहती हूँ बिकॉज द वे टीचर इज़ गोइंग टू प्लान द लेसन्स, द वे टीचर इज़ गोइंग टू हैंडल मल्टीमीडिया, the way teacher is going to use AVAs, the technological tools. For example, if teacher is not appropriately using that tools with efficiency, with skills and with much training needed to handle those tools, तो उस tool का कोई फ़ायदा नहीं होगा या उसके वो desired results नहीं हासिल होंगे। तो if a teacher is having a planned lesson, then behavioral objectives and the tool educational gadget which is used effectively and aligned with the objectives, तो जो आपकी teaching होगी that would become the part of the behavior. तो अभी हम देखते हैं कि जो educational technology है that is composed of or linked with technology, but the teaching aspect or the presence of teacher cannot be minused from that educational technology. So it's systematic application of the knowledge of sciences to practical tasks in education, so that whatever is taught inside the classroom that becomes a part of the behavior of the students. So educational technology is development, application and evaluation of system, techniques and aids to improve the process of human learning. So we can say that by applying the principles of educational technology, we can make the teaching learning process more efficient, more effective and more student centered, more personalized. So this is science of techniques, methods and media. अब ये जो techniques और methods हैं, ये आपका software aspect है जो कि that is directly related with the teacher aspect, जिसको हम ignore नहीं कर सकते. And media is, जैसे मैंने आपको पहले बताया, that is technology in education, all the technological gadgets and tools. तो science of techniques and methods and media by which teaching learning process can be improved. So
If you are having a technological tool, for example कंप्यूटर है, if teacher cannot appropriately engage students by using that computer, तो उसमें desired learning outcomes नहीं होंगे. तो contrastingly अगर हम एक ऐसा टीचर है जिसके पास सिंपली ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, वो टेक्नोलॉजी है उसके पास, इफ़ ही और शी इज़ यूजिंग efficiently that whiteboard and engaging students with little sort of like technology, तो आपकी वो वाला जो क्लासरूम है that would be much better than that जिसमें सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं बट वो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा, उसमें मेथड्स और टेक्निक्स का जो है वो फुकदान है. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द गोल्स एंड ट्रांसलेटिंग दैम इन बिहेवियरल टर्म्स. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बिहेवियरल टर्म्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर से वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो. तो बेसिकली जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वी कैन से दैट इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि कैसे उसका रिज़ल्ट होता है, दैट इज़ वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट, we are going to adapt the scientific method to the behavioral science of teaching learning process. तो यहाँ पे adaptation होती है, हम adopt नहीं कर रहे, we are going to mold it as per the demands of the particular lesson. तो हम अपने लेसन के साथ टेलर करते हैं जो भी हमारे पास एजुकेशनल टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स हैं, जो स्किल्स हैं, हम उनको रिफ़ाइन कर सकें. तो अब आते हैं कि इतनी हमने पीछे आप लोगों को बताया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है. तो इन अ नटशेल वी कैन से दैट द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स टू इन्हांस टीचिंग एंड लर्निंग. तो ओवरऑल इसका जो पर्पज़ है दैट इज़ टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी को इनटू एजुकेशन, जिसका अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि हमने अपनी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव बनानी है, बट जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो मोर इफ़ेक्टिव हो, उनके लिए एक्सेसिबल हो और इंगेजिंग हो. तो अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी लाइक अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और स्टूडेंट्स कैन एक्सेस दीज एंड इम्प्रूव लाइक किसी भी एस्पेक्ट पे जो है, किसी भी सब्जेक्ट पे आप इस पे जो है ना वो ट्रेनिंग या स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल खान एकेडमी है, कोर्सेरा के कोर्सेज़ हैं. इसके अलावा अगर हम अपनी क्लासरूम्स की बात करें तो नाउ द स्मार्ट बोर्ड्स हैव रिप्लेस्ड द वाइट बोर्ड्स एंड द ब्लैक बोर्ड्स. तो यूज़ ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं वो आपको एक एग्जांपल नज़र आता है, बट अगेन आप टीचर की जो एफिशिएंसी है, उसका जो टीचिंग मेथड है, उसको इससे एब्सेंट नहीं कर सकते. दैट इज़ अल्टीमेटली एसोसिएटेड विद दैट स्मार्ट बोर्ड्स इन द क्लासरूम्स विच आर नाउअडेज being used in the classroom. तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, दीज आर लाइक एक उसकी एग्जांपल हमारा आगही पोर्टल है, गूगल क्लासरूम. जैसे कोविड में आपने देखा कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तो आगही पे शिफ्ट किया, लेकिन बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस थे पाकिस्तान में अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने गूगल क्लासरूम या मूडल के प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट किया. तो दीज आर द रियल एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तो अगर आप मूडल में या गूगल क्लासरूम में जस्ट क्लासरूम को ऑन कर दें तो स्टूडेंट कैन नॉट लर्न through the PPTs unless and until they are engaged with the video, with the content being presented and delivered through these platforms. तो वर्चुअल रियलिटी जो है उसको भी हम कह सकते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी को, कि मोर और लेस दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत सी क्लासेस हैं, जैसे बायोलॉजी है या साइंसेस की जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम स्टूडेंट्स को उन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं जो कि रियल लाइफ में हम उनको एक्सपीरियंस नहीं दे सकते. देन दे फील लाइक पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग द गैजेट्स, इट्स अबाउट इन्हांसिंग द इंटायर लर्निंग एक्सपीरियंस. तो उसमें आपके पास जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं आप उसको इफ़ेक्टिवली प्लान करें, एफिशिएंटली यूज़ करें और अपने जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपनी एफ़र्ट्स लगाएं. डियर स्टूडेंट्स,
इसके साथ ही आज के हमारे पहले प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। डॉक्टर नाइला नसीर आपसे इजाज़त चाहती हैं। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।